So today we'll discuss on various life processes in this video. So what is life processes? Day to day life में बहुत सारे processes हमारी body या तो सबके organisms की body use करती है. So basic मैं बताऊँ तो जैसे कि nutrition लेना है, excretion है, transportation है. So these are considered into life processes. Basic points if I discuss, all living organisms perform various life processes जो कि necessary होते हैं हमारी life maintain करने के लिए, और सारे processes को perform करने के लिए हमें energy required होती है. ठीक है. So basic life processes जो मैं पहले बता रही थी, तो हमारे 4 basic life processes है जो सब करते हैं, that is nutrition, respiration, transportation and excretion. ठीक है. और ये सारे processes मैं आगे discuss करूंगी. So what is nutrition? Basic process to obtain energy, उसको मैं nutrition बोलूँगी. So it's a process by which organisms obtain nutrients from food and utilize them to obtain energy, building and repairing of their own tissues. So basically food को हमारी body में या किसी organism की body में convert किया जाता है first, ताकि उससे energy मिले, और यही energies या तो किसी फॉर्म में यूज की जाए, जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ द सेल्स या टिश्यूज है हमारे बॉडी के, उसके लिए. This is a proper definition for it. It's the substance that is required for the process of growth and maintenance of a living body. Example, the material which provides energy to an organism is termed as a process of nutrition. ठीक है. Now, what is the mode of nutrition? There are various modes of nutrition. We'll discuss it. So mode of nutrition varies. It's not the same for all the organisms. So जैसे कि plants में nutrition का process photosynthesis के process के form में होता है, जबकि animal, fungi और other bacteria है, उसमें organism plant से ही अपना nutrition take up करते हैं, वो खुद नहीं बनाते. So according to that mode of nutrition, they are divided into two main modes, that is autotrophic one and heterotrophic one. Autotrophs are basically वो जो खुद बनाते हैं, heterotrophs जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और heterotrophs को और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, that is holozoic nutrition, saprotrophic nutrition and parasitic nutrition. ये मैं बाद में डिस्कस करूंगी आगे. Now what is autotrophic mode of nutrition? Organisms जो अपना खाना खुद बनाते हैं या basically use up simple food materials that are obtained from inorganic sources in form of carbon dioxide and water is autotrophic mode of nutrition. और ऐसे organisms के example है कि plants है, फिर blue green algae है, green bacterias है, cyanobacterias. All these are examples for autotrophic mode of nutrition जो use करते हैं. जो ये mode use करते हैं उनको mode of nutrition is termed as autotrophic mode of nutrition इसको बोला जाएगा. And in मेन एक चीज याद रखने जैसी ये है कि अगर स्कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी में लिखा हो, तो इसका मतलब वो लोग केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एज देयर फूड. ओके. नाउ हाउ डू प्लांट्स टेक न्यूट्रिशन? सबका अपना अपना एक प्रोसेस होता है, तो प्लांट्स का भी अपना एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन टेकअप करते हैं. So what is basically photosynthesis? It's a complex process by which plants, green parts of the plants take up organic food. ठीक है. जिसके अंदर बेसिक ऑर्गेनिक या रॉ मटेरियल जो यूज होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कन्वर्ट किया जाता है उनके फूड मटेरियल में. उसका एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज प्लस वाटर. ठीक है. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ग्रीन प्लांट्स इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर. अब ये ऑक्सीजन तो हवा में चला जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज soluble in air, तो ये तो हवा में गया, ग्लूकोज बचा और वाटर बचा. ना ग्लूकोज जो मैंने बताया, दैट्स अ काइंड ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट. सो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स एज द एनर्जी सोर्स. जब उनको एनर्जी यूटिलाइज या एनर्जी नहीं चाहिए तो वो क्या करेंगे, इस कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, और प्लांट्स स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स उनको
ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और फिर यही दोनों चीज़ें इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमंस या कोई और ऑर्गेनिज्म में एज ए इंटरनल एनर्जी सोर्स के फॉर्म में यूज किया जाता है इसको. सो इवेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस यूं ही नहीं हो जाता. यहाँ पे मेजर इवेंट्स होते हैं लाइन बाय लाइन जो होते हैं, और 3 मेजर इवेंट्स से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है. दैट इज फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, सेकेंड इज कन्वर्जन एंड थर्ड इज रिडक्शन. सो एब्जॉर्प्शन में तो क्या होगा, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी बाय क्लोरोफिल. ठीक है, this light energy is converted into chemical energy and is splitted into this splits water molecule into hydrogen and oxygen. So क्या होगा कि जब ये splitting of hydrogen water का hydrogen and oxygen में होगा, this term is known as photolysis of water. ठीक है, reduction होगा जिसके अंदर carbohydrate I mean carbon dioxide is converted to carbohydrates. ठीक है ना. कुछ ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पूरा प्रोसेस इन द डे नहीं करते. हाफ ऑफ द प्रोसेस इज डन एट नाइट. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स हैं, दे टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड मेक एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और अ कंपाउंड विच इज स्टोर्ड इन देयर बॉडी एट नाइट, और फिर सुबह की डे लाइट एनर्जी में इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मेन कंप्लीट प्रोडक्ट. ये क्यों किया जाता है डेजर्ट प्लांट्स की वजह से, बिकॉज सुबह ऐसा हो जाता है कि इफ दे स्टार्ट टेकिंग अप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सुबह करे तो वाटर लॉस बहुत होता है बिकॉज हीट बहुत ज़्यादा होती है. इसके वजह से ये लोग इंटरमीडिएट प्रोसेस करते हैं जिसमें रात को आधा प्रोसेस हो जाता है और बाकी का प्रोसेस सुबह होता है. सो साइट विच इज इन्वॉल्व फॉर फोटोसिंथेसिस, बेसिकली हम सब यही सोचते हैं कि भाई ग्रीन प्लांट्स है, ग्रीन सरफेस है, तो भाई फोटोसिंथेसिस यहीं से हो जाएगा या तो लीव से हो जाएगा. बट बेसिकली फोटोसिंथेसिस हाँ लीव से होता है, बट लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये सैक्स के अंदर क्लोरोफिल होता है. दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड दीज आर क्लोरोफिल के सैक्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड. इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. एंड लीव्स के अंदर हुआ, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स एंड दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स. मैंने बताया इसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर बेसिक फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, बिकॉज क्लोरोफिल के ये पिगमेंट्स ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि फर्दर यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ना. अब लीफ कैसा होता है वो भी जानना पड़ेगा हमें. सो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ में ऐसा होता है कि देर आर 3 मेन पार्ट्स. द फर्स्ट इज एपिडर्मिस जो कि थिक लेयर होता है जो प्रोटेक्ट करता है एक लीफ को ऊपर और इनर नीचे के पार्ट से. So there is an outer layer or outer upper epidermis and then there is one lower epidermis. Lower epidermis में stomata होते हैं, जबकि अपर एपिडर्मिस में ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज वाटर लॉस ना हो धूप और उसकी वजह से, इसीलिए स्टोमाटाज आर प्रेजेंट डाउन. स्टोमाटा बेसिकली क्या है, टाइनी पोर्स होते हैं लोअर एपिडर्मिस पे जहाँ से रैपिड एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है. और स्टोमाटा का प्रोसेस इसीलिए टेक प्लेस करता है जस्ट बिकॉज गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के वजह से, बिकॉज गार्ड सेल्स ही स्टोमाटल पोर्स के साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं जैसे यहाँ पे है, और इनकी टर्जिडिटी पे डिपेंड करता है कि कब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा कब नहीं हो रहा. बिकॉज अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना है तो ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं और फिर क्लोज हो जाते हैं. सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स कैसे होता है, it is because of the process of turgidity and second is because of the process of transpiration. जब बहुत ज़्यादा water अगर एक plant के अंदर present है और उसको water release करना है, so what it will do is कि first of all plants में water बहुत ज़्यादा है तो ये guard cells swell up हो जाएंगे, ठीक है, टर्जिड हो जाएंगी, जिसकी वजह से होल ओपन क्रिएट होगा बीच में जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा फ्रॉम द इनर लीफ पार्ट टू द आउटर एयर. ठीक है, और जैसे ही प्लांट को लगेगा कि हाँ भाई उनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज इनफ, उतनी गैसेस हो चुकी है, सो इट विल लूज अप द वाटर फ्रॉम द गार्ड सेल्स. टर्जिडिटी कम हो जाएगी गार्ड सेल्स की, सारा पानी और मॉलिक्यूल्स या जो भी आयंस और एक्स्ट्रा मटेरियल वेस्ट मटेरियल तो वो सारा ऐसे बाहर रिलीज हो जाएगा. व्हेन वो श्रिंक हो जाएंगे तब यहाँ पे स्वोलन हो जाएगा गार्ड सेल और यहाँ पे श्रिंक हो जाएगा. स्वोलन होगा तो ओपन हो जाएगा होल और श्रिंक होगा तो वैक्यूल बंद हो जाएगा.
सो नाउ कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, बहुत सारी कंडीशंस होती है नेसेसरी, बट उनको दो बेसिक कंडीशंस में कंसिडर की, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की इंटेंसिटी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और सेकेंड चीज़ है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, कलर पिगमेंट कितना है एक प्लांट के अंदर, अगर कम होगा तो वो उतना एनर्जी, लाइट एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा, और कम एब्जॉर्ब करेगा सोलर एनर्जी, उसके वजह से फूड प्रोडक्ट उतना फॉर्म नहीं होगा, तो प्लांट के चांसेस होते हैं डाई होने के इसमें। Now, raw materials which are required for photosynthesis, there are basic three raw materials, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड अदर मटेरियल्स। अदर मटेरियल्स में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ट्रांसपिरेशन और रेस्पिरेशन के टाइम पे भी लिया जाता है, स्टोमाटल एक्सचेंज से भी आ जाता है, और सरफेस ऑफ लीव, स्टेम्स एंड रूट से भी कंट्रीब्यूट हो जाता है। देन कम्स वाटर, जो कि रूट से एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट पार्ट्स पे, फिर उसका फोटोलाइसिस टेक्स प्लेस होता है, आयंस बनते हैं जो कि रिड्यूस किए जाते हैं, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज गिवन ऑफ एज अ बाई प्रोडक्ट उसमें से। And other materials which are required, that is iron, phosphorus, magnesium, which are taken up by the soil. Nitrogen is also required, but nitrogen usually inorganic forms में लिया जाता है, जिसमें ज़्यादातर नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के फॉर्म में वो लिया जाता है, एंड मेनी अदर बैक्टीरियाज ऑल्सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आके प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर, लाइक राइजोबियम इज द एग्जाम्पल. Now, heterotrophic mode of nutrition. Here they cannot make up food on their own. ठीक है, so they cannot prepare food on their own. They contain energy for organic. They take up energy from the organic molecules. फिर they use biocatalysis of enzymes. ठीक है, for conversion of their food material. Differ from this type of nutrition differ from other various organisms depending upon the availability and process of obtaining food material. They could be omnivorous, herbivorous, carnivorous, saprotrophs and parasitic. So because इतने सारे different types हैं heterotrophic nutrition के, so they are divided mainly into three parts. So these three parts are holozoic nutrition first, जिसके अंदर herbivores, carnivorous और omnivorous. Herbivores are those जो plants के ऊपर depend करते हैं, carnivorous जो meat वगैरह खाते हैं, omnivorous जो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है. एंड कॉम्प्लेक्स फूड, इसमें क्या होगा ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इज टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर या तो बाहर से, एंड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इन देयर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अमीबा है, काव है, कैट है, डॉग है. सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, दीज आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स. यहाँ पे क्या होगा ना कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे ये लोग फीड करते हैं, एंड बेसिकली यहाँ पे food is broken outside and then it is absorbed inside. For example bread molds है, mushrooms है, ठीक है. Now parasitic nutrition क्या होता है ना, they are basically like parasites, चिपक जाते हैं, या तो they live on an organism or a host or inside their body without killing them. Example it's tapeworm, leech, lice, etc. Now so this is the end of the video, and आज हमने क्या क्या इसमें पढ़ा, that is nutrition, modes of nutrition, जिसके अंदर ऑटोट्रॉफिक आता है. ऑटोट्रॉफिक के अंदर बेसिकली हमने प्लांट्स का डिस्कस किया फॉर फोटोसिंथेसिस, कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड होती है उसके लिए, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, फिर हेटरोट्रॉफिक के कितने टाइप्स हैं वो हमने पढ़े. So these are some questions which would help you. So please go through these questions ताकि तुम्हें पूरा टॉपिक वापस से लास्ट में ब्रश अप हो जाए, तो तुम्हें समझ आ जाए कि हाँ तुम्हें सब याद है. So these are some questions which I have put up. ठीक है. So guys, this is the end of the video, and in next video I'm gonna discuss on nutrition of amoeba, nutrition in human beings, alimentary canal, digestive canal, mechanism of digestion of food. So stay tuned for more such videos, and if you have any kind of doubts from any of my videos, you can just let me know in the comment section. I'll be there to answer. Thank you guys.